নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে RT নিউজ RTV আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ যোনটো প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে for the interest of the students. We have a lot of students. Right now we are having a very special guest. She's my student. I'm very proud of her success till now. The amount of success that actually she has achieved, it's great. And somewhere I feel that মই বিশ্বাস কৰোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে তাই inspiration and motivation. And for that reason actually I have invited her to join me here in this small size studio so that my student they can take the real advantage of those kind of contents syllabus which are going on right now at the outside of our state, brilliant wonderful state Assam. So I'll not talk too much about myself or the program, but definitely I really want to hear some sort of information regarding about her position, about her job role, and especially how she can help us मेरे स्टूडेंट्स को कैसे वो मदद कर सकते हैं. सो हियर्स विथ मी आर्या शर्मा. आर्या, सबसे पहले थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में जानना चाहूँगा. रियली एक्चुअली वी आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ फेसेस हियर एंड स्टिल सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर जस्ट कमिंग. मे बी आफ्टर फ्यू मिनट्स दे विल बी जॉइनिंग हियर. सो फर्स्ट टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट. Okay, thank you everyone for this opportunity, especially sir. It's a very privilege for me कि मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है, you guys know my name. I am from Barpeta Road and I have studied from BH College, just done my BCom. But after BCom I wanted to do something, some other courses. तो मैंने फिर MBA किया. उसके साथ और भी कुछ extra courses भी किए मैंने, which actually improved my technical skills, my soft skills. एंड देन आई हैड टू अ डू जॉब. मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब ही करना है कुछ अच्छा पोजीशन पे. उसके लिए भी एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़े, सम टेक्निकल. एंड देन करेंटली आई एम पोजीशनड एज BI एग्जीक्यूटिव, विच इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव इन निल्सन IQ. इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ. बहुत अच्छा जर्नी है, यू नो, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि हम यहाँ से निकल के क्या करें. दैट्स द थिंग. बट आई विल टेल यू गाइज, if you are studying, study really hard. It's very interesting for you all. It's very nice. You said like your position, right? Business intelligence executive. So मैं जानना चाहूँगा मेरी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मैं अलग जानिब विचारिम এই যে পজিশনৰ কথাটো ক'লে বিজনেছ ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্সিকিউটিভ. হেভ ইউ এভাৰ হাৰ্ড দিছ ৱৰ্ড লাইক বিফ'ৰ? কেতিয়াবা শুনা পাইছা নেকি? ফাইন, নাম্বাৰ 1. চ' এই আমাৰ পজিশ্যনৰ বিষয়ে আমি তাইৰ পৰা অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. উইল জাষ্ট ট্ৰাই টু ন' মোৰ এবাউট দিছ পজিশ্যন এণ্ড হাউ ইট ৱৰ্কছ. আৰু কোম্পানীটোৰ নাম আছিল আমাৰ নিলছন IQ. এই নিলছন IQৰ বিষয়ে অলপ আমি জানিবলৈ বিচাৰিম. এণ্ড দিছ কোম্পানী ইউ চেড লাইক ইট ইজ FMGC কোম্পানী, ৰাইট? চ' FMGCৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' দেট মাই ষ্টুডেণ্টছ দে কেন গেট some sort of ideas regarding about the company details and the position and how it works. So you just tell us something about this position and this FMGC and the company so that they can understand actually your position also and the company. So my company is actually data company, consumer intelligence company. क्या करती है कंपनी? So consumer intelligence sounds very attractive, very unique. So आप लोगों को AI के बारे में पता होगा, artificial intelligence. It's somehow related to that, but not exactly that. So consumer intelligence is how people are working. मतलब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ख़रीदारी कर रहे हैं. आज आप कुछ ख़रीद रहे हो, मैं कुछ ख़रीद रही हूँ. सो हाउ पीपल आर परचेजिंग, उसके बारे में हम डेटा निकालते हैं. सो मेरी कंपनी उस डेटा एनालिटिक्स कंपनी है. हम क्लाइंट्स को जो सर्व करते हैं, दोज आर FMCG क्लाइंट्स, विच इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. कंपनीज़ लाइक डाबर, यूनिलीवर, PNG, नेस्ले एक्सेट्रा, मैरिको, ये सब कंपनीज़ के आप नाम सुने होंगे. सो हमारे क्लाइंट्स वो सारी कंपनीज़ हैं. सो वो कंपनीज़ पूरे वर्ल्ड में सामान अपना सेल्स करती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट, क्या पैक साइजेस होते हैं. सो हमारी कंपनी वो सारे डेटा को कलेक्ट करती है एंड माई रोल इज़ कि उन सारे डेटा को क्लीन करके उन सबको विजुअलाइज करके उनको प्रेजेंट करना है. साउंड्स डिफ़िकल्ट बट इट्स वेरी ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड इनटू दिस इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव कि हमारे पास बहुत सारे डेटा है. डेटा मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमारे पास नंबर्स आते हैं बहुत सारे कि इस मार्केट में सपोज इंडिया मार्केट में इतना बिका है और बांग्लादेश मार्केट में इतना बिका है, यूरोप में इतना बिका है. बट
इतना नंबर्स का क्लाइंट क्या करेगी, क्लाइंट को एक अच्छे समराइज्ड फॉर्मेट में चाहिए डेटा. So we make summarized format in Excel through PPTs, through Power BI tools, more tools like Tableau, Power BI, ये सारे tools जो होते हैं हम वो यूज़ करते हैं. So इन सब के लिए specifically we are trained and then we are told to work. Interesting काम है ये. काम यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं, बट इफ़ यू गो बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बहुत स्कोप है इस काम का. एंड इट्स एनालिटिक्स वर्क, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बोल रहे हो माई साउंड इज़ वेरी मच लाउड इनफ, सो आई रियली डोंट रीड एट दिस मोमेंट. एनीवेज मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि जैसे कि डेटा, यू आर कलेक्टिंग डेटा, योर रोल इज़ कलेक्टिंग डेटा. देखो मतलब তোমালোকৰ কাৰণে কৈ আছোঁ ডেটা কালেকশ্যন কৰিছে, কিন্তু হা বস্তু কালেকশ্যন নহয়. এনেকুৱা নহয় যে কোনো এটা কোম্পানীৰ সে এক্সাম্পল সাৰ্ফ এক্সেল, এওঁলোকে দোকান যায় সাৰ্ফ এক্সেলৰ, সেইটো নহয়. তাৰ মানে এক্সাম্পল মই যিমানখিনি বুজি পালোঁ, मतलब जहाँ तक मुझे ये समझ में आया, जैसे कि सर्फ एक्सेल का जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, सो इंडिया में इसका मार्केट बहुत अच्छा है, बट बांग्लादेश में इसका मार्केट बहुत वीक है. सो आपका पोजीशन है इंडिया में इसका मार्केट क्यों इतना अच्छा है लेकिन बांग्लादेश में क्यों इतना पुअर है. मतलब सर्फ एक्सेल दोनों कंट्री में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा उतना नहीं है. तो आप क्या करते हो, मतलब ये सारे जो भी टूल्स अपने का, मतलब इसको यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करते हो, मतलब क्यों यहाँ पे अच्छे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ. अच्छा, सो दैट्स द थिंग. तो ये लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल. आप सर्फ एक्सेल पकड़ लो, कैडबरी पकड़ लो, 5 स्टार, कोई भी ब्रांड, ओके, एनीथिंग यू टेक इट और नेम इट. मे भी हो सकता है इंडिया मार्केट में वो बहुत अच्छा करे. सो हम बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं. हम स्टेट वाइज देखते हैं कि अगर कुछ प्रोडक्ट असम में अच्छा कर रहा है, वाई इज़ इट नॉट डूइंग गुड इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखते हैं कि असम में अगर कहीं कुछ अच्छा कर रहा है तो अदर डिस्ट्रिक्ट में क्यों, मे बी बक्सर डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है बट बरपेटा में क्यों नहीं अच्छा कर रहा. दिस इज़ वेरी मैक्रो लेवल. माइक्रो लेवल पे अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं कि असम में अच्छा कर रहा है, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं कर रहा. कंट्री वाइज देखिए, इंडिया में अच्छा कर रहा है, श्रीलंका में क्यों नहीं कर रहा, बांग्लादेश में क्यों नहीं कर रहा. सो वी आइडेंटिफाई थ्रू दैट डेटा. आइडेंटिफिकेशन मतलब वी हैव वैल्यू सेल्स समझ में आ रहा है आपको कि कितना बिक रहा है एक कंपनी का एक पीरियड में, मे बी एक हफ्ते में कितना सेल्स है, एक महीने में कितना सेल्स है, एक साल में कितना सेल्स है. ये डेटा तुम लोग को मिलता कहाँ से, मतलब who's giving you the data? ओके, सो वो भी हमारी कंपनी ही कलेक्ट करती है. एक दूसरी टीम है जो हर रिटेल स्टोर्स में, सो जो कंप्यूटराइज रिटेल स्टोर्स है, एनी स्टोर, वहाँ से वो डेटा निकालती है. बिकॉज कंप्यूटराइज डेटा इज़ क्लोज टू एक्यूरेट डेटा, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेट सेल्स एंट्री हो रही है, राइट. बाकी जो ग्रॉसरी स्टोर्स है, जो रिटेल स्टोर्स है, वहाँ पे भी जाती है, बट वहाँ पे वो अलग तरीके की कैलकुलेशन करके वहाँ से डेटा निकालती है. सो अल्टीमेटली हर दुकान में कितना सेल्स हो रहा है वो हमें पता चल जाता है. वो डेटा एक टीम के पास आती है हमारी कंपनी में, फिर हमारे पास वो डेटा और थोड़ा बेटर फॉर्मेट में आता है कि इट्स डिवाइडेड कि ऐसा सेल्स है, एंड देन वी विजुअलाइज इट. क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट वांट्स टू अंडरस्टैंड, ही वांट्स टू फाइंड सम एनालिसिस, सम इंसाइट्स कि व्हाई इज़ माई प्रोडक्ट नॉट परफॉर्मिंग गुड इन दिस मार्केट वर्सेस दैट मार्केट. तो मेरा काम है कि मैं उनको एक्सेल में मोस्टली दिखाती हूँ यूजिंग एडवांस एक्सेल टूल्स कि देखो आपका इंडिया मार्केट में मे बी प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर रहा है बट बांग्लादेश में नहीं कर रहा, क्योंकि XYZ रीजन्स. बिकॉज हो सकता है इकोनॉमी इज़ इम्पैक्टिंग, इन्फ्लेशन इज़ इम्पैक्टिंग, मे बी प्राइस पर यूनिट बढ़ गया. मतलब एक प्रोडक्ट का मे बी इंडिया में अगर 12 रुपया है तो वहाँ पे 14 रुपया हो गया, सेम किलोग्राम्स का या सेम ग्राम्स का. अदर रीज़न कैन बी मे बी जो सिटीजन्स है उनके इनकम लेवल इफ़ेक्ट करता है कि इंडिया में भी हो सकता है एवरेज इनकम इज़ मोर कंपेयर टू अदर्स, इसलिए यहाँ पे इंडिया में मे बी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ज़्यादा, बांग्लादेश में नहीं बिक रहे, श्रीलंका में भी नहीं बिक रहे, वॉट एवर. सो दैट इज़ हाउ द एनालिसिस एंड इंसाइट्स वी डू. सो दिस इज़ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन आवर इंडस्ट्री कि हम सिर्फ ये नहीं है कि हम डेटा निकाल रहे हो भेज रहे हैं, हम क्लाइंट को ये भी बोल रहे हैं कि आपका बिजनेस इस वजह से घट रहा है, इस वजह से आपका बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है. दैट्स व्हाट वी डू. इट्स ग्रेट. आप लोगों को ये समझना है कि इनका जो पोजीशन है ना, कोई दूसरा और एक टीम है, जो वो टीम क्या करते हैं, मार्केट से जितने भी कंप्यूटराइज्ड रिटेल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का एंट्री कंप्यूटर पे होते हैं, तो वो लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं. फिर वो लोग कलेक्ट करके उस डेटा को थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइज करके ठीक ठाक तरीके के फॉर्मेट बना के इनको सबमिट करते हैं. फिर ये क्या करते हैं, वो सारे डेटा को सही ढंग से स्टडी करके उसको विजुअलाइज करते हैं. तो ये इनका रोल.
वहाँ से हम लोग मतलब जो भी क्लाइंट्स आपका जो है वो ग्लोबल लेवल का क्लाइंट्स है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद इन द कंट्री और इंडिया, ये बाहर से भी हो सकता है। तो वो लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट इस मार्केट पे ये ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई मार्केट लॉन्च करने से पहले तो कोई क्लाइंट आप लोगों से अप्रोच करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, फिर वो मार्केट पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग लॉन्च नहीं करें, ऐसे भी होता है कभी? हाँ, वो भी होता है। सो फॉर एग्जांपल मे बी एक क्लाइंट है जो ऑलरेडी यूरोप में है, बट अब उसको एशिया मार्केट में आना है। सो एशिया इज़ द बिगेस्ट कंटिनेंट, वहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री है, चाइना है, कोरिया है, जापान है। मे भी हो सकता है एक प्रोडक्ट यूरोप में बहुत अच्छा किया, बट ही वॉन्ट्स टू नो क्या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी एशिया में है, एंड इफ़ है तो इफ़ वो पर्टिकुलर ब्रांड एंटर करेगा तो वो किस तरीके का कंपटीशन फेस करेगा। सो हम उस कंपटीटर के सारे डेटा उनको निकाल के देते हैं, मार्केट का पूरा आइडिया देते हैं कि ऐसा ऐसा मार्केट है, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत प्रेफर करते हैं, एंड देन उस हिसाब से डेटा देख के कि येस आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, वो हम उनको इंसाइट्स देते हैं। इट्स वंडरफुल एक्चुअली। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल प्रेजेंट है, एटलीस्ट मिनिमम थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है, ये पोजीशन का रोल क्या होता है, राइट? एम आई करेक्ट? समझ में आया ना सभी को थोड़ा मोर और लेस? फिर उसके बाद जैसे कि ग्लोबल कंपनी का नाम जैसे भी इन्होंने बताया कि कोई भी क्लाइंट्स क्यों अप्रोच करते हैं, इनको कैसे आपको ब्रॉडकास्ट मतलब चीज़ों को समझाना चाहिए, ये सारे चीज़ ये वहाँ पे करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्किल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि एडवांस एक्सेल इन्होंने कहा, राइट? सो एडवांस एक्सेल को यूज़ करके ये सारे डेटा को ठीक ठाक तरीके से बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए ये पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। सो आई थिंक दीज आर द बेस्ट टू टूल्स, लाइक आई थिंक MS ऑफिस जितने भी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे आइडिया है या फिर वो लोग सीखना चाह रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तीनों पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का यूसेस मार्केट में ज़्यादा है, राइट? सो और भी सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर हम बाहर के जैसे कंपनी के बारे में बात करें, सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस दैट दे आर मोस्टली यूज, राइट? सो ये तीन जो सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बारे में, इनका यूजेस के बारे में आपको प्रैक्टिकली जानना ज़रूरी है, करेक्ट? So I guess that all of you have successfully understood like what's her position and how she just working there and the job role. So मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा if you have any such type of questions, any questions to our speaker, because we are about to start our next also contents. Abu, any question first? Any question to her? Yes, yes. अच्छा डाटा कलेक्शन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आया हमारे सामने, क्या क्या प्रॉब्लम है? डेटा कलेक्शन ये नहीं करते, इनके लिए कोई टीम है, वो टीम डेटा को कलेक्ट। नहीं, मैम नहीं जाते। योर पोजीशन इज अ सिटिंग पोजीशन, राइट? मतलब बैठ के ये फिर से एनालाइज करते चीज़ों को, लेकिन इनके पास डाटा आता है, डाटा, वो डेटा के लिए कोई दूसरा टीम है, राइट? सो दूसरा टीम मार्केट पे जाके वो लोग कलेक्ट करते डेटा, दे कलेक्ट द डेटा, राइट? फर्स्ट अंडरस्टैंड, दे कलेक्ट द डेटा एंड देन दे जस्ट रीऑर्गेनाइज द डेटा वंस अगेन एज पर द नॉर्म्स एंड द रूल्स फॉर द कंपनी, ठीक है? फिर उसके बाद वो डेटा को वो लोग बना के इनके पास सबमिट करते हैं, देन शी स्टडी दैट एंड देन एनालाइज इट फॉर द कंपनी। आपका जो काम है वो आपको नहीं पता है तो क्या पोजीशन तो आपका जो पर्सनली काम है वहाँ पे वो काम करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम होती है? ठीक है, दैट्स एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास कभी भी ब्रीफिंग आती है, ब्रीफिंग मतलब क्लाइंट को ये चाहिए, हमें जब पता चलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या क्लाइंट को सही में इतना ही चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम जितना वो बोलते हैं उतना हम बना के दे दे, बट बाद में फिर से क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लियर कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे अगेन कम्युनिकेशन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो उनसे बात कर रही हूँ, वो जो मुझसे बात कर रही है, वो क्लियर रहे कि कल को ये नहीं वो मुझे ये बोल दे कि नहीं मैंने तो ये नहीं बोला था। सो दैट इज़ वाई बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उस ड्यूरेशन में। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्योंकि हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते, वो हमारे क्लाइंट है। वो अगर बोलेंगे कि मैंने ये नहीं बोला, सो वील हैव टू सम हाउ मैनेज दैट सिचुएशन इवन दो उन्होंने बोला हो या नहीं बोला, वॉट एवर।
सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कीप इन माइंड। वो जनरली कहीं पे भी होता है, आप स्मॉल बिजनेस भी कर रहे हो तो यू वुड नो कि हम अपने क्लाइंट्स को नहीं नाराज़ कर सकते हैं, सो हम तो फिर भी बहुत बड़े क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं। दैट्स द थिंग। द सेकेंड प्रॉब्लम इज समटाइम्स हम अटक जाते हैं कि हमें क्या करना है। वो भी सेम इसी वजह से दिक्कत आती है क्योंकि अगर ब्रीफिंग क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है क्या करना है, तो हम अटक जाएंगे एक पॉइंट पे कि हमें पता है कि क्लाइंट को ये चाहिए, बट क्या ये उनको हेल्प करेगा किसी चीज़ में? मे भी हो सकता है क्लाइंट सोच रहा हो कि मुझे हेल्प करे, बट आई एज एन एनालिस्ट आई नो कि वो उनको हेल्प नहीं कर सकता वो पर्टिकुलर डेटा। सो ये सब जब सिचुएशन आती है तो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि हमारे पास डेडलाइंस रहते हैं कि इस पर्टिकुलर काम को हफ्ते भर में करना है या 3 दिन में करना है, चाहे वो 5 दिन का काम हो फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं 3 दिन में करके दो। सो दीज आर सम डिफिकल्टीज दैट वी फेस। इज देयर एनी क्वेश्चन? वेरी न्यू फ्रेशर्स गाइस, सच में मैं कहना चाहूँगा अब्दुल्ला एंड देन शरीफुल, इट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट फॉर मी। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैंने ये सोचा नहीं था कि आप लोगों में ये पोटेंशियल है, बट somehow actually I now feel actually yes definitely I'm blessed कि BBA में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मतलब जो कह सकते हैं। आपका जो था जो ओपिनियन मैं अपने तरफ से रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे गेस्ट से सुनना चाहूँगा कि उसके बारे में क्या लगा, मतलब शरीफुल के बारे में। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। बॉडी लैंग्वेज, आई लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्माइल दो, स्माइल दे के बात करो कि ऑडियंस भी इंटरेस्ट बना रहता है। कंटेंट वाइज आपका टॉपिक अच्छा था, यू कैन जस्ट इम्प्रूव ऑन इट बिकॉज इट्स लर्निंग प्रोसेस, तो आप बस जितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे उतना बेटर होगा। बट बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। अब मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल अगर टोन क्वालिटी के बारे में बात करूँ, पोस्चर्स के बारे में बात करूँ, सब कुछ ठीक था, लेकिन एंडिंग जो था टॉपिक्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच था। और जैसे कि आपने ये स्टार्टिंग पे कहा कि मैं कुछ कहना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन या फिर गवर्नमेंट कौन सा बेटर होगा, ये आखिरी में आपने इसको छोड़ दिया कि एज अ क्वेश्चन हिसाब से। तो चलिए ठीक है, सब कुछ वंडरफुल था, ब्रिलियंट था। इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा कि मैं जिस टॉपिक पे बोल रहा हूँ ना, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। प्राइवेटाइजेशन अगर आप प्रीफर करते हो, अगर गवर्नमेंट नहीं करते हो, तो वो जवाब आप दे देना या फिर टॉपिक का हेडिंग ही चेंज कर देना कि आज टॉपिक्स में जानना चाहूँगा विच वन इज़ बेटर। हाँ, प्राइवेट का कुछ आप स्कोप शेयर कर दो, गवर्नमेंट का कुछ शेयर कर दो, फिर उसके बाद दैन वी कैन एक्सपेक्ट फाइन, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस। गर्ल्स से कोई 1-2 तो आने से अच्छा ही होता। गर्ल्स से हाउ कैन गर्ल्स बी सो क्वाइट, कम, रिलैक्स। आप सभी को तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे RTV। सो आज यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ है विद स्टूडेंट्स फ्रॉम BH कॉलेज। इन लोगों ने कोर्स पे यहाँ पे एडमिशन लिया था, बहुत अच्छा था। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन डिपिक्स, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल जो एजुकेशन है, यहाँ पे आज हम लोगों ने एक गेस्ट को इन्वाइट किया था एंड हर नेम इज़ आर्या शर्मा। शी हैज़ अ वेरी नाइस आइडिया, कंसेप्ट, एंड आई फील दैट कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए शी कैन बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन, एंड फॉर दैट रीजन एक्चुअली आई हैव इन्वाइटेड हर टू कम हियर टू जॉइन मी। सो ऑलरेडी वी have completed one very nice interesting topic, that how can a student get more success in his or her life. So इसके बारे में आर्या मैं तुमसे जानना चाहूँगा, लाइक जो भी आज प्रेजेंटेशन था, जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया, व्हाट डू यू थिंक, लाइक जो इनका मेजर स्ट्रेंथ्स है या फिर जो भी वीकनेसेस आपको लगा है, ये सारे वीकनेसेस होना नहीं चाहिए, एंड स्पेशली नॉट ओनली फॉर दिस लिमिटेड स्टूडेंट्स। सो आई कॉल ऑल दो स्टूडेंट्स दैट एक्चुअली दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर लाइफ कैरियर, दैट रियली एक्चुअली वी नीड टू बिल्ड समथिंग गुड फॉर आवर फैमिली, फॉर मी ऑल्सो। सो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट कैन कनेक्ट दैम ऑल्सो। सो आर्या, फर्स्ट टेल अस लाइक हाउ डू यू फील? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड कि बरपेटा रोड में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है हु इज़ हेल्पिंग एवरी स्टूडेंट एंड ऑल्सो अप्रोचिंग देम कि आप आओ, आप ज्वाइन करो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वेर यू वुड गेट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इतने अच्छे मेंटर आपको मिल रहे हैं, इतने अच्छे सराउंडिंग्स मिल रहा है, पीपल मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आना चाहिए। एंड जो इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है ना स्लोली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना कि आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो। मे बी 1 year लेटर इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग विद दिस यू विल इम्प्रूव। सो आई विल ओनली टेल यू कि प्रैक्टिस करो, आओ यहाँ पे एवरी वीकेंड। आई कैन ऑलरेडी सी इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लोग यहाँ पे हैं, सो दैट्स अ रियली वेरी गुड वर्क।
ये मैं कहना चाहूँगा, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम BH कॉलेज BBA डिपार्टमेंट, आई एम एक्चुअली सरप्राइज टू सी देयर प्रेजेंटेशन. आई थॉट लाइक ये लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत नर्वस थे, बहुत हेजिटेट थे. सो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट लाइक आज संडे, सो एक प्रेजेंटेशन होगा तो आप लोग थोड़ा रेडी करके आना. सो ट्रस्ट मी, जो प्रेजेंटेशन था, सो आई एम नाउ फीलिंग लाइक कि कुछ हो सकता है कि BH कॉलेज में कुछ चेंजेस आ सकता है. हाँ, यस, आई कैन नॉट गारंटी दैट कि पूरा का पूरा BH कॉलेज, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं डेफिनेटली जो BBA हो या फिर BA हो या फिर BCom हो, बहुत सारे जो भी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आई कैन गारंटी दैट यस इन लोगों का फ्यूचर में एक स्किल्स जो बहुत स्ट्रांग होगा वो होगा कॉम्स स्किल्स. और उसके लिए मैं हमेशा से ही कहूँगा कि आप लोगों को रहना चाहिए. लेकिन आर्य, आप थोड़ा बहुत ये बात बताओ कि एक तो होता है एकेडमिक्स, कि एकेडमिक्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना इट्स लाइक ये गुड ऑप्शन नहीं होगा. लेकिन एकेडमिक्स के साथ ये सारे चीज़ों को, जैसे कि नॉन टेक्निकल जो सिचुएशन साइट्स है, जो ट्रेनिंग से, क्या वो अभी लेना इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने सुना कि ये अभी नहीं बाद में लेना चाहिए. सो विच वन इज़ बेटर कि राइट नाउ मुझे करना है या फिर आज से 1 या 1.5 साल बाद करना. नॉन टेक्निकल एजुकेशन मतलब जो कॉम स्किल्स, जो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये लगता है कि कॉम स्किल्स का इंपॉर्टेंस बाहर कितना है? इट्स टू मच, आई विल टेल यू. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन, कि आपका फ्लुएंट कम्युनिकेशन हो, आप जो बोलना चाह रहे हो वो सामने वाले को समझ आए. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज बार आई वुड नॉट कीप एनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 पास करते हो उसके बाद से इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज 10 तक वी रन फॉर आवर एग्जाम्स एक्सेट्रा, बट उसके बाद प्लीज़ टाइम निकाल के करना ही चाहिए फॉर एवरीबडी. आई विल टेल दिस. तो अभी आप ग्रेजुएशन में हो, PG कर रहे हो, यहाँ पे हो, इट्स नेसेसरी कि आप वीकेंड टाइम निकालो. अगर वीकडेज में टाइम नहीं मिल रहा है, वीकेंड टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटा, एंड डू प्रैक्टिस इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या अप्लाई कहाँ पे करेंगे? मान के चलिए कि किसी ने